Hi, my dear students, welcome back to your YouTube channel. Now we are going to know the answers of the third language Hindi class 9th model question paper 2014. We will see now that this is question paper from Karnataka School Examination and Assessment Board. Maulyankana March 2024 model question paper assessment. Okay, the class is 9th, subject is third language Hindi, marks is 80, time is 3 hours. Okay, before going to this question paper, you must subscribe this YouTube channel because your subscription is our motivation. For this, we will begin the question paper. Here, my dear students, you can write that your name and surname, SATS number, signature of yours. And next it is information to be filled for the room invigilator. Okay, then here the question numbers and obtained, how many marks you obtained. It's totally grand total and signature of the evaluator, that is left to evaluator, my dear students. Okay, next come to the question number 1. In the first में निम्नलिखित बहु विकल्पीय प्रश्नों को 4 उत्तर दिए गए, उनमें से सही उत्तर चुनकर संकेत अक्षर के साथ लिखिए. 8 questions are here. Each question carries that 1 marks, totally 8 marks. The first question is, फूल के पास मौसी बेटी थी. पास का पर्यायवाची शब्द. पास शब्दದ पर्यायवाची शब्द ಯಾವುದು? उत्तीर्ण है, दूर है, समीप है, बगल है. The right answer is here option C, समीप और समीप है. Okay, this is the first question. Right here the option C, the answer is समीप है. Next we will see that the question number 2, कवि, कवयित्री, लेखक ಡ್ಯಾಶ್. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಡನ್ನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಲೇಖಕ, ಲೇಖಕಿ, ಲೇಖಿಕಾ, ಲೇಖ್, ಲೇಖನಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲೇಖಿಕಾ. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न वाक्यों में बहुवचन रूप है. हम ही जाएंगे, मैं ही जाएंगे, तुम ही जाओगे, वही जाएगा. द आंसर इज हियर ऑप्शन ए, हम ही जाएंगे. इट इज़ द निम्न वाक्यों के बहुवचन रूप है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ಏನಿದೆ क्वेश्चन नंबर 4, अपना दुख भी एक है साथी, अपना डैश भी एक. रिक्त स्थान में प्रयुक्त होने वाले के दुख का विलोमार्थक शब्द. ದುಃಖ ಶಬ್ದದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು? ವಿಲಾಪ, ಗಮ್ಮ, ವಿರಹ, ಸುಖ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸುಖ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸುಖ. दुख का विलोमार्थक शब्द सुख. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव दैट द क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय संधि शब्द का सही विग्रह रूप. विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस लय है, विद प्लस आलय है. द राइट आंसर इज बी, विद्या प्लस आलय. इट बिकम अ विद्यालय. दिस इज द ऑप्शन बी इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपका शुभ नाम क्या है? वाक्य के अपेक्षित विराम चिन्ह ಏನದು? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ನ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಪ್ಕಾ ಶುಭ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು ಬರಲೇಬೇಕು. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, गायब होना अर्थ से संबंधित मुहावरा. बोझ उठना है, कदम बढ़ना है, हाथ बढ़ना है, 9 2 11 होना है. द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, 9 2 11 होना है. गायब होना मीन्स 9 2 11 होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूर्ण कीजिए. कर्नाटक डैश राजधानी बेंगलोर है.
कर्नाटकी, कर्नाटका के को करना, ऑप्शन ए इज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। द आंसर इज की। नेक्स्ट सेकेंड में प्रथम दो शब्दों से संबंधित अनुरूपता के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित अनुरूप शब्द लिखिए। मौशी ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಸುಭದ್ರ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್. ಎರಡನೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಮೌಶಿ ಬರೆದವರು ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭದ್ರ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बस 2 रुपयों में काका नारियल वाला केवल 50 पैसे. देन द आंसर इज नाव वाला. वायु ऊर्जा, हवा सौर ऊर्जा, देन सूर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 पहिए साइकिल, 3 पहिए रिक्शा. 2 ಗಾಲಿದು ಸೈಕಲ್ಲು, 3 ಗಾಲಿದು रिक्शा. नेक्स्ट थर्ड में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. बंदरगाह में नारियल का दम क्या था? बंदरगाह में नारियल का दम 50 पैसे था. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50 पैसे इतु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोगों के पास किसके लिए समय नहीं है? लोगों के पास लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए समय नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कवि के अनुसार हम कब तक विराम नहीं हैं? कवि के अनुसार मंजिल को पाने तक विराम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सुजान लोग संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? सुजान लोग संपत्ति का संग्रह दूसरों के हित के लिए करते हैं. Dear students, if you are getting any difficulties, then you can take the screenshot or pause or write the answer. Pause ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. नेक्स्ट फोर्थ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. 8 questions are here. Each question carries 2 marks. Total 16 marks. बाई को बहन कैसे विदा करते हैं? बाई को बहन ने कहानियाँ की राजकुमारी तरह विदा करती है. थाली में दिया जलकर लाती है और माथे पर तिलक लगाकर चावल बिखेरती है. आरती करके बाई को विदा करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बाबूबाई ने किन किन से मदद मांगी? बाबूबाई कुल 3 लोगों से मदद मांगते हैं. उन्होंने सबसे पहले माली से, उसके बाद उटावले से और अंत में गुड़सवर से मदद मांगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नवीकरणीय योग्य ऊर्जाओं पर प्रकाश डालिए. नवीकरणीय योग्य ऊर्जा के उत्पादन प्रमुख जल, वायु तथा सौर ऊर्जा है. उन्हें जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहते हैं. से ये सब नवीकरण योग्य ऊर्जा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चन्नम्मा के माता पिता कौन थे? चन्नम्मा के पिता का नाम दुलप्पा देसाई है और माता का नाम पद्मावती है. नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, दुर्घटना से बचने को 2 उपाय लिखिए. दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी जरूर है, जैसे सवारी के सीमित गति में रखना, सड़क पर लगे संकेतों का पालन करना, संचार के नियमों का पालन करना हमें दुर्घटना से बचाने का उपाय है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आज मेरे सामने रास्ता इतना पड़ा. पंक्ति का आशय क्या है? आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा. इस पंक्ति का आशय यह कि मनुष्य अपने आप पर विश्वास करे और हम में निहित क्षमाओं के पहचान कर कोशिश करते हुए हमारे मंजिल तक पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कल्पना के बचपन की आकांक्षा क्या थी और कल्पना की शिक्षा के बारे में लिखिए. कल्पना के बचपन की आकांक्षा यही ही कि आकाश से स्थित चांद सितारों के छूना, इसलिए
उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इस आकांक्षा के अनुरूप ही की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सब प्रतिभागियों के विजय को घोषित किया गया और अथवा बुझते दीपों के तन में मन में कवि किस प्रकार के प्रकाश भरने को कहते हैं? बुझते दीपों के तन में मन में कवि स्नेह का प्रकाश भरने को कहते हैं। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस प्रकार की शक्ति और स्नेह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। हियर इज 3 marks क्वेश्चन, 9 questions are here, each और इज दैट 3 marks। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? द आंसर इज स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया है। स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों के उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी देश से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 26? मौसी की निस्वार्थ सेवा के बारे में लिखिए। मौसी निस्वार्थ भाव से बच्ची के और उस मोहल्ले के सबके सुख दुख समय में साथ देती थी। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। उन्हें स्कूल से घर पहुंचाती थी और मौसी बच्चों को कहानियाँ, चुटकुले आदि सुनाती थी। बच्चों के खिलाने कुछ न कुछ अपने पास अवश्य रखती थी। Okay, this is the answer of question number 26. Next we will move to that question number 27. शिलंग नगर के बारे में लिखिए। शिलंग मेघालय की राजधानी है। वह एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते दुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। इस प्रकार के हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27, शिलंग नगर के बारे में वी रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भीम ने ब्राह्मण परिवार का कष्ट कैसे दूर किया? ಭೀಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ दूर मारदा? भीम ने ब्राह्मण के परिवार को बदले में स्वयं बकासुर के पास जाकर उनका प्राण बचाया। बकासुर का वध करके उस परिवार को और एक चक्री नगर के कष्ट को हमेशा के लिए दूर किया। इस प्रकार भीम ने ब्राह्मण परिवार को कष्ट दूर किया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, भीम ने ब्राह्मण परिवार का कष्ट कैसे दूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे इसके बारे में लोगों में जागृति लाना, सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभाग के साथ अपना सहयोग देना, उसके साथ साथ सड़कों को तो काटने तथा तया गंदा करने वालों को यह एहसास दिलाना कि इससे सबका कितना कष्ट सहना पड़ता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण का महत्व समझाइए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे हम जी सकते हैं। यह हमारे लिए आवश्यक से भी ज़्यादा अनिवार्य है। हमें समझाना चाहिए कि इस पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास के
जल, वायु, वन आदि के रक्षा करें। पर्यावरण को दूषित करके हम स्वार्थ नहीं रह सकते, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। दिस इज द आंसर ऑफ 30, पर्यावरण का महत्व। नेक्स्ट वी विल मूव टू दैट क्वेश्चन नंबर 31। मेहनत करने वालों मिलकर कदम बढ़ाने से क्या होता है? मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाने से कई असाध्य को साध्य कर सकते हैं। जैसे सागर भी रास्ता छोड़ सकते हैं, पर्वत सिरा झुकाते हैं, सब मिलकर मंजिल को पा सकते हैं। अंत हमें अपने हाथ मिलकर चलना चाहिए। ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, next we will move to that 32nd question. Okay dear student, it is more speed. If you are not getting that notes, you can take the screenshot or you can pause and write the answers. Okay, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तरवर फल नहीं कात है, सरवर पिया ही न पाना, कही रहीम प्रकाशित, संपत्ति सच्चाई सुजान। रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे कि सज्जन लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ 32। नेक्स्ट 33। निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ भाषा में लिखिए। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव, खेल रत्न आदि पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಜುನ, ಏಕಲವ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಧ್ಯಾನಚಂದ, ರಾಜೀವ್, ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಮುಂತಾದವು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು। ಇದರ ಜೊತೆ ಮನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ 33। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। खेलों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, या खेल की उपयोगिता के बारे आप क्या जानते हैं? द आंसर इज, हमें स्वस्थ रहने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विश्वास होता है। खेलने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। खिलाड़ियों को धनराशि भी प्राप्त होती है, साथ में प्रतिष्ठा भी मिलती है। खिलाड़ियों के पढ़ाई और उद्योग में आरक्षण भी मिलती है। हम किसी ना किसी खेल में भाग लेना चाहिए। ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पद्यांश पूर्ण कीजिए। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमके हरा भरा। इष्ट बरदर 4 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ईश्वर की पूजा न करने को कहा। प्रहलाद ने बात नहीं मानी, तब हिरण्यकश्यप ने उसे कैद खाने के डाल दिया, गर्म खंबे से बंधवा दिया, पहाड़ में गिरा दिया। लेकिन सब कुछ होने पर भी प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी होलिका के वरदान का वह आग में चल रही शक्ति, परंतु देखते ही देखते वह जलकर रख हो गई और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कैद खाने के क्यों डाल दिया? द आंसर इज, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद ने ईश्वर की पूजा करने के से रोका। प्रहलाद ने बात न मानी, इसलिए कैद खाने में डाल दिया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, भगवान के अनन्य भक्त कौन था? भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद था। होलिका कौन थी?
ಹೋಲಿಕಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ್ ಕಿ ಬಹನ್ ಥी ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन होलिका का प्राप्त वरदान क्या था? होलिका का आग में न जलने का वरदान था. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 to 12 वाक्यों में निबंध लिखिए. पर्यावरण की रक्षा, विषय प्रवेश, विषय विस्तार, उपसंहार. खेल का महत्व, विषय प्रवेश, विषय विस्तार, उपसंहार. कंप्यूटर, विषय प्रवेश, विषय विस्तार, उपसंहार. Okay, these essays already in textbook you have, my dear students. You can write and you can study your textbook. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक के बहन की शादी कारण के हुए 3 दिन छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए. और अपने विद्यालय का शैक्षणिक प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए. ओके, दिस इज द 5 marks letter writing, my dear students. I hope if you wrote this much, then you will get that 80 marks your written examination. Totally we answered the answers of all questions. ಆ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಯು ಐ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವೈ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ what? It's our motivation to do the more classes to bring in front of you. Then you can share that your friend circle who need this video class. You can share to the link for them also, and you have to, if you like it, you can give the 1 like, and whatever the you have the still doubts, you can comment in that comment section. Okay, if you have that any question paper PDF, I will already kept in the description box, or you can contact that. The contact number is anything you have the 8861884287. It is also there in our YouTube channel. Okay, thanks for watching. The once again I will come with that one more important video of you, the betterment of your study. Okay, thanks for watching. See you in the next video class.